Yes, beta, welcome to physics class. In my last video, I have discussed with you a simple concept of path of electric field of line from any conductor, and I have drawn a simple diagram of solid metallic conducting sphere, and I have taken multiple options of path of electric field of line, of path of electric field of line. Now I have taken different path of electric field of line from a solid conducting sphere, from a solid conducting sphere, from a solid conducting sphere. Now, as we know that inside any conducting material electric field must be zero, so that option cannot be acceptable. Then again lines are passing from solid conducting metallic sphere, that option is not acceptable. Again that option is not acceptable. Now in D option, electric field of lines are making an angle of 90 degree at point A, and at point B again they are making an angle of 90 degree. It means they are arriving at solid conducting sphere at an angle of 90 degree, and they are leaving the solid metallic conducting sphere at an angle of 90 degree. So that case can be acceptable according to the property of electric field of lines. It means हमने डिस्कस किया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस हमेशा सरफेस पे एंगल क्या बनाएंगी 90 डिग्री, और अगर सरफेस को लीव करेंगी तो भी एंगल क्या बनाएंगी 90 डिग्री. सो एंड इनसाइड solid metallic conducting sphere electric field must be zero. So this case is possible. Now if we have another case in that way, we have another case in that way, then that E option cannot be possible because they are not making an angle of 90 degree with surface. So here we have angle is not 90 degree, here we have angle is not 90 degree, and okay, they are not passing from solid metallic conducting sphere, that is right, but they are not making an angle of 90 degree at that point and at this point, so that case is not possible. So lines will not pass from conducting sphere, plus they should make an angle of 90 degree at point of arriving and at point of leaving. तो यहाँ पर लिमिटेशन क्या आई, यहाँ पर लैकिंग किसकी आई, यहाँ पर लाइंस आपकी मटेरियल में से पास तो नहीं हो रही हैं, बट दे आर नॉट मेकिंग एन एंगल ऑफ 90 डिग्री. सो ई ऑप्शन विल नॉट बी करेक्ट. नाउ नेक्स्ट वी हैव इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी. Next we have electric field intensity due to discrete arrangement of charges. Discrete arrangement of charges. It means we have multiple charges like plus q1 plus q2 plus q3 plus q4. Now at point P we have to find out total electric field. Now at P point we must assume plus q naught. आपको मालूम होगा बेटा कि अगर हमें कहीं पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करनी है तो उसके लिए हमें वहां पर एक टेस्ट चार्ज अज्यूम करना पड़ेगा, और टेस्ट चार्ज हमें कैसा लेना है, दैट इज पॉजिटिव, दैट इज प्लस q नॉट. अब प्लस q1 प्लस q नॉट, तो यहां पर प्लस q1 की फील्ड कैसी होगी, दैट इज रिपल्सिव, दैट इज आउटवर्ड. अब प्लस Q4 पॉजिटिव प्लस Q नॉट,
positive, again outward, that is E4, then plus Q2, then again it is outward, then plus Q3. तो यहां प्लस Q3 का अटैक कैसा होगा, दैट इज आउटवर्ड, देन अगेन इट इज आउटवर्ड, अगेन इट इज आउटवर्ड. तो अब हमें यहां पर E1 मिल गया, E2 मिल गया, E3 भी मिल चुका है और E4 भी. हमें इन इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस को अब सिंपली ऐड करना है. तो एडिशन के लिए हमारे पास कौन सा प्रिंसिपल है, दैट इज प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन. सो अब हमें इन इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस को ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन की हेल्प से ऐड करना है. तो हमें इन लाइंस को अब प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन के बेस पे ऐड करना है. सो वी हैव टू ऐड दीज vector quantities by using triangle law of vector addition or by using polygon law of vector addition. Now we have net electric field equal to E1 plus E2 plus E3 plus E4. Now in summation form we can write KQI upon RI square, I equal to 1 to 4. Now total electric field को हम कैसे ऐड करेंगे, कि QI upon RI square, and here we have unit vector that is R cap. तो अगर हम इसको समेशन की फॉर्म में लिखेंगे, समेशन की फॉर्म में कैसे लिखेंगे, कि QI अपॉन RI स्क्वायर, I का मीनिंग I इक्वल टू 1, दैट इज I इक्वल टू 1, दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ फर्स्ट चार्ज, दैट इज प्लस Q1. नाउ Q1 अपॉन R1 स्क्वायर इनटू R1 यूनिट वेक्टर. नाउ अगर हम समेशन को ओपन करेंगे, क्या आंसर आएगा, कि Q1 देन R1 स्क्वायर इंटू R कैप 1 प्लस Q2 अपॉन R2 स्क्वायर अपॉन R कैप 2, देन प्लस Q3 अपॉन R3 स्क्वायर R कैप 3, देन प्लस Q4 अपॉन R4 स्क्वायर इंटू R कैप 4. तो हमें यूनिट वेक्टर को भी साथ में अटैच करना है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी वेक्टर क्वांटिटी है. तो वेक्टर क्वांटिटी में एक तो मैग्नीट्यूड होगा और साथ में उसकी डायरेक्शन भी होगी. नाउ दिस इज फॉर्मूला ऑफ नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डिस्क्रीट अरेंजमेंट ऑफ charges. So we can write this formula in summation form, or we can write this formula by addition of individual electric field of individual charges. तो हम individual charges के electric field को P point पे निकाल के उसको simply vector rule of addition से add करके net electric field का formula, net electric field का आंसर यहाँ पर P point पे easily निकाल सकते हैं. So this is about discrete arrangement of charges. Now next topic of discussion is electric dipole. 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 Electric dipole. Now what is the meaning of electric dipole? So in this system we have two poles having electric charges. So electric dipole का मीनिंग क्या होगा बेटा? मीनिंग ऑफ डाइपोल, डबल पोल. इट मीन्स यहां पर जो भी मटेरियल होगा वो मटेरियल
टू पोल कैरी करेगा, उस मटेरियल के, उस बॉडी के दो एंड होंगे, दो एंड का मीनिंग दो उसके पोल होंगे, लाइक इन बार मैग्नेट we have two pole, that is north pole and south pole, and we have proper separation between north pole and south pole. This is north pole and this is south pole. तो उसी टाइप से अब हमारे पास जो कॉम्बिनेशन है उसमें दो पोल हैं और दोनों पोल कैसे हैं, इलेक्ट्रिकली चार्ज्ड हैं. सो दैट इज कॉम्बिनेशन ऑफ टू पोल सेपरेटेड बाय स्मॉल डिस्टेंस हैविंग इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस. तो हमें ये मालूम करना है कि इलेक्ट्रिक डाइपोल कैसे बना हुआ है. तो हम सबसे पहले डाइपोल को लेंगे. डाइपोल का मीनिंग डबल पोल. इसका मीनिंग सब्सटेंस के अंदर, इस बॉडी के अंदर दो पोल होंगे, दो एंड होंगे और दोनों एंड पे नेचर कैसा होगा, इलेक्ट्रिक होगा. और अगर दोनों एंड पे नेचर आपका इलेक्ट्रिक है तो दोनों एंड आपके कैसे होंगे, चार्ज्ड होंगे. तो दोनों एंड पे अगर चार्ज है तो हम ये अब डिफाइन कर सकते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल को. इट इज अ पेयर ऑफ इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय स्मॉल डिस्टेंस r. So we can say that when two equal and opposite charges are separated by small distance, then that combination, that system is known as electric dipole. So in case of magnet we have two poles and both are equal in strength and opposite in nature. उसी टाइप से इलेक्ट्रिक डाइपोल में क्या होगा कि दो पोल होंगे, दोनों पोल पे चार्जेस का मैग्नीट्यूड कैसा होगा, दोनों चार्जेस की स्ट्रेंथ कैसी होगी, सेम होगी, मैग्नीट्यूड सेम होगा, बट उनका नेचर कैसा होगा, अपोजिट होगा. तो जैसे बार मैग्नेट बना है वैसे ही इलेक्ट्रिक डाइपोल भी बना है. इसका मीनिंग हम इलेक्ट्रिक डाइपोल का डिफाइन कैसे करेंगे. इट इज अ पेयर ऑफ टू equal and opposite charges separated by small distance 2a is known as electric dipole. तो इलेक्ट्रिक डाइपोल का मीनिंग we have two poles and in electric dipole we have two poles and both poles are carrying equal and opposite charges. तो एक पोल पे अगर प्लस क्यू चार्ज है, दूसरे पोल पे चार्ज कैसा होगा, माइनस क्यू. मैग्नीट्यूड सेम होगा बट चार्जेस का नेचर कैसा होगा, अपोजिट होगा. इसका मीनिंग जैसे एटॉमिक डाइपोल के अंदर दो पोल होते हैं उसी टाइप से मैग्नेटिक डाइपोल के अंदर भी आपको दो पोल मिलेंगे, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल. उसी टाइप से इलेक्ट्रिक डाइपोल में आपको दो पोल मिलेंगे और दोनों पोल कैसे होंगे, इलेक्ट्रिक चार्ज कैरी करेंगे और दोनों पोल कैसे होंगे, इलेक्ट्रिकली चार्ज्ड होंगे. तो इसका मीनिंग पेयर ऑफ टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय स्मॉल डिस्टेंस 2a इज नोन एज इलेक्ट्रिक डाइपोल. तो अब ये क्लियर हो गया है कि इलेक्ट्रिक डाइपोल के अंदर हमें दो एंड मिलेंगे और दोनों एंड पे चार्जेस का मैग्नीट्यूड सेम होगा बट चार्जेस का जो नेचर होगा वो अपोजिट होगा. तो एक एंड पे अगर प्लस क्यू आएगा, दूसरे एंड पे माइनस क्यू आएगा. लाइक इन मैग्नेट वी हैव वन एंड हैविंग नॉर्थ पोल, अदर एंड इज हैविंग साउथ पोल. तो उसी टाइप से इलेक्ट्रिक डाइपोल के अंदर भी हमारे पास दोनों पोल्स पे स्ट्रेंथ सेम मिलेगी बट नेचर अपोजिट मिलेगा. सो कॉम्बिनेशन ऑफ टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय स्मॉल डिस्टेंस इज नोन एज इलेक्ट्रिक डाइपोल. नाउ अब इलेक्ट्रिक डाइपोल के एग्जांपल क्या क्या हो सकते हैं, व्हाट आर द एग्जांपल्स ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल्स. अब इलेक्ट्रिक डाइपोल के एग्जांपल हमारे पास हैं, दैट इज NaCl, Na plus Cl negative, that is electric dipole. In the same way
in case of water we have H plus OH negative. Again we have H plus OH negative, that is combination of equal and opposite charges separated by small distance. तो यहां पर पॉजिटिव आयंस का सेंटर ऑफ मास नेगेटिव आयंस के सेंटर ऑफ मास से कोइंसाइड नहीं करेगा, सो देयर इज separation between center of mass of positive ions and center of mass of negative ions, so that separation will make electric dipole. So there is separation between positive and negative ions center of mass. So if we have separation between center of mass of positive ions and center of mass of negative ions, then we can say that there is formation of electric dipole. One end is having Na plus, other end is having Cl negative. In the same way in water we have same formation of electric dipole. One end is having H plus, other end is having OH negative. So these are the examples of electric dipole. Now, what is the physical significance of electric dipole? What is the physical significance of electric dipole? Electric dipole की physical significance क्या है? What is the physical significance of electric dipole? हम इनको पढ़ ही क्यों रहे हैं? क्या मीनिंग है इलेक्ट्रिक डाइपोल का? क्या करता है फिजिक्स के अंदर? What is the main purpose of study of electric dipole? What is the main function of electric dipole? So electric dipole will tell us sample is having polar molecules or non-polar molecules. तो जिन मॉलिक्यूल्स में पॉजिटिव सेंटर ऑफ मास में और नेगेटिव सेंटर ऑफ मास में सेपरेशन होगा, देन दोज मॉलिक्यूल्स आर नोन एज पोलर मॉलिक्यूल्स. अब जिन मॉलिक्यूल्स के अंदर पॉजिटिव सेंटर ऑफ मास और नेगेटिव सेंटर ऑफ मास में सेपरेशन नहीं होगा, देन दोज मॉलिक्यूल्स आर नोन एज नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स. तो अगर हमें किसी सैंपल में इलेक्ट्रिकल डाइपोल मिलेंगे, देन दैट सैंपल इज नोन एज पोलर सैंपल. और किसी सैंपल में अगर हमें मॉलिक्यूल्स में पॉजिटिव और नेगेटिव सेंटर ऑफ मास में सेपरेशन नहीं मिलेगा, देन दैट सैंपल इज नोन एज नॉन पोलर सैंपल. सो वी कैन डिफरेंशिएट पोलर सैंपल and non-polar sample by using concept of electrical dipole. तो अगर हमें इलेक्ट्रिक डाइपोल के बारे में मालूम है तो हम ये मालूम कर सकते हैं कि जो आपका स्पेसिमेन जो सैंपल है वो आपका पोलर सैंपल है या वो नॉन पोलर सैंपल है. तो अब हमें ये मालूम चल सकता है कि सैंपल के अंदर इलेक्ट्रिसिटी डेवलप होगी या नहीं होगी. तो अगर हमें किसी सैंपल के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड को इंड्यूस करना है तो हमें मालूम होना चाहिए कि सैंपल आपका पोलर है या नॉन पोलर है. और हमें ये मालूम कहां से चलेगा? बाय यूजिंग द कांसेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल. तो अब मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल दे रहा हूं. सपोज कर लो वी हैव टू सैंपल्स, वन इज हैविंग polar property and other is having non-polar property. अब एक सैंपल के अंदर इस टाइप से प्लस और माइनस के बीच में प्रॉपर सेपरेशन है. अब ये सैंपल मेरे पास है. इस सैंपल में जो मॉलिक्यूल्स हैं उनके पास अपना इंडिविजुअल इलेक्ट्रिक डाइपोल है. तो इन मॉलिक्यूल्स के अंदर इलेक्ट्रिक डाइपोल बना हुआ है. आप चेक कर सकते हो, प्लस माइनस में सेपरेशन है, प्लस माइनस में सेपरेशन है, प्लस माइनस में सेपरेशन है. तो इस
इस सैंपल के अंदर हम इलेक्ट्रिक फील्ड को इजीली इंड्यूस कर सकते हैं। इस सैंपल के अंदर हम इलेक्ट्रिक फील्ड को इजीली इंड्यूस कर सकते हैं। इट मींस अगर मैं इस सैंपल को किसी भी एक्सटर्नल फील्ड में रखूंगा तो इस सैंपल के अंदर इजीली इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी इंड्यूस हो जाएगी। नाउ अगर मेरे पास सैंपल इस टाइप से है, अब इस सैंपल के अंदर मॉलिक्यूल्स के अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस के बीच में जीरो सेपरेशन है। इट मींस ये सारे के सारे मॉलिक्यूल आपके नॉन पोलर हैं। इट मींस इन मॉलिक्यूल्स की इलेक्ट्रिक डाइपोल वाली प्रॉपर्टी कैसी है, निल है, जीरो है। तो इस सैंपल के अंदर इलेक्ट्रिक डाइपोल वाली प्रॉपर्टी आपको नहीं मिल रही। तो अगर इस सैंपल को आप रखोगे एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में, then it is very difficult to make electric field inside that non-polar sample of molecule। तो अगर आपके पास कोई पोलर सैंपल होगा तो उसके अंदर अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड को जनरेट करना है तो वो इजी टास्क है। तो अगर आपको किसी नॉन पोलर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड को जनरेट करना तो वो डिफिकल्ट टास्क होगा। तो अगर हमारे पास इलेक्ट्रिक डाइपोल का कंसेप्ट है तो हम मालूम कर सकते हैं कि किस सैंपल के अंदर हम इलेक्ट्रिक फील्ड को इजीली इंड्यूस कर सकते हैं और किस सैंपल के अंदर हम इलेक्ट्रिक फील्ड को काफी टाइम के बाद इंड्यूस कर पाएंगे। इसका मीनिंग फिजिकल सिग्निफिकेंस में हमें इलेक्ट्रिक डाइपोल में ये मिला कि इफ वी नो द कंसेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल देन वी कैन डिफरेंशिएट मॉलिक्यूल्स ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल बाय सेइंग दैट these are polar molecules and these are non-polar molecules। तो अगर हमें इलेक्ट्रिक डाइपोल का मालूम है तो बेटा हम ये मालूम कर सकते हैं कि ये मॉलिक्यूल आपके पोलर हैं और ये मॉलिक्यूल आपके नॉन पोलर हैं। सो दिस इज फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल। नेक्स्ट अब हम ये मालूम करेंगे कि इलेक्ट्रिक डाइपोल की स्ट्रेंथ क्या होती है। टेल मी द स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल की स्ट्रेंथ को मालूम करने के लिए हमें इलेक्ट्रिक डाइपोल को डीपली डिस्कस करना पड़ेगा। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल की स्ट्रेंथ। Now the strength of electric dipole is known as electric dipole moment। Electric dipole moment। So electric dipole moment is known as strength of electric dipole and it is defined as the product of magnitude of charge, the product of magnitude of charge and separation between two charges is known as electric डाइपोल मोमेंट। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। तो ये क्लियर होना चाहिए आपको कि डाइपोल की स्ट्रेंथ हमें किससे मिलेगी, उसकी इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट से। और इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की डेफिनेशन क्या होगी, द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज टेकन फ्रॉम एनी पोल and separation between two charges is known as electric dipole moment। separation means जो लाइन नेगेटिव चार्ज को पॉजिटिव चार्ज से कनेक्ट करेगी, that line is known as separation between negative and positive charge। so that line is known as separation between negative charge and positive charge। तो अब हम सबसे पहले एक इलेक्ट्रिक डाइपोल का फिगर बनाएंगे और उसके अंदर अब हम इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट को शो करेंगे। सो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का मीनिंग है
कि वो क्वांटिटी जो डाइपोल की हमें स्ट्रेंथ बताएगी कि डाइपोल के अंदर स्ट्रेंथ क्या है, दैट स्ट्रेंथ इज गिवन बाय इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। तो वन एंड पे हमारे पास प्लस क्यू चार्ज है और सेकेंड एंड पे हमारे पास माइनस क्यू चार्ज है। तो जो लाइन माइनस क्यू को और प्लस क्यू को आपस में कनेक्ट करेगी, that line, that separation is known as separation between two equal and opposite charges. So that separation is 2a. It is vector quantity and it starts from negative to positive. So it starts from negative charge and it will end on positive charge. तो ये सेपरेशन आपका स्टार्ट कहां से हुआ है, फ्रॉम नेगेटिव, और एंड कहां हुआ है, पॉजिटिव पे। और प्लस क्यू चार्ज एट वन एंड, माइनस क्यू चार्ज एट अदर एंड। सो दिस इज फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल। नाउ दिस इज फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो डाइपोल की फॉर्मेशन आपको क्लियर हो गई है, दैट इज H प्लस Cl नेगेटिव। तो एक एंड पे H प्लस है, दूसरे एंड पे Cl नेगेटिव है, एक एंड पे Na पॉजिटिव है, दूसरे एंड पे Cl नेगेटिव है, और दोनों के बीच में सेपरेशन कौन सी लाइन बना रही है, फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव। नाउ इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट हैज सिंबल स्मॉल p in vector form, and that is magnitude of charge taken from either pole into separation between two equal and opposite charges. So that is 2a separation. Q means magnitude, P means electric dipole moment. Electric dipole moment. Now SI unit of electric dipole moment is, SI unit of electric dipole moment is, SI unit of small p is coulomb meter, that is coulomb meter. And practical unit of electric dipole moment is d by. So d by is practical unit of electric dipole moment. Now 1 d by is equal to 1 d by is equal to 10 power minus 10 Franklin into 10 power minus 10 Franklin into 1 Armstrong into 1 Armstrong। तो अब हमें इस फॉर्मूलेशन को सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज करना है। तो 1 d बाय किसके इक्वल है, 10 पावर माइनस 10 फ्रैंकलिन ऑफ चार्ज इनटू 1 आर्मस्ट्रॉन्ग। तो आर्मस्ट्रॉन्ग आपकी डिस्टेंस की यूनिट है और फ्रैंकलिन आपकी चार्ज की सीजीएस यूनिट है। तो अब हमें मालूम होना चाहिए कि 1 फ्रैंकलिन is equal to 1 coulomb upon 3 into 10 power 9। तो अब हम ये वैल्यू यहां पुट करेंगे, then 1 Armstrong is equal to 10 power minus 10 meter, 10 power minus 10 meter। तो ये वैल्यू हम यहां पुट करेंगे अब, और अब चेक करेंगे कि d बाय प्रैक्टिकल यूनिट को हम सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज कैसे करेंगे, इसको SI यूनिट में चेंज कैसे करेंगे। सो हाउ मच कूलम मीटर इज प्रेजेंट इन 1 d बाय। तो क्वेश्चन आप नोट कर सकते हो कि हाउ मच कूलम मीटर
प्रेजेंट इन 1D बाई, तो हमें कन्वर्ट करना है 1D बाई को कूलम मीटर में। नाउ 1D बाई